अभी 5:05 हुए हैं. I think today is a victory because I've been able to get out of the house this early. The only reason is it's gonna get very hot later. That's why this painting is still under construction, if you may. और आज चलते हैं फिर से दोबारा फॉरेस्ट और देखते हैं क्या होता है आगे आगे. There's a good piece of news which just happened very unexpectedly. I had just stepped out of my lane and this gentleman comes on a scooty. Guess what? He was the chief instructor at the gym where I was working out 6 months ago. And I asked him, is my membership still valid? He said, sure, please come and we can start again. Stepping out of the house really makes a difference. I was literally cooped up in a prison, isolated from the rest of the world. And today is day 4. And am I happy to be out and about? Oh, I know I shall be cured. And thank you so much for joining me on this journey and making it worthwhile. And for me also to find a purpose and new beginnings. Great things, new beginnings. After all, life is all about change. The journey has already begun and I managed to do a walk of 2 hours. Not bad. Look at this lush vegetation. It's very nice. And it's back to the chaos of the outside world. Look at this tree. How many years it must have aged. Wow. Isn't it amazing? Look at the canopy. There are pockets like these, even though Delhi falls under the Aravalli range. I think there are pockets which are semi-tropical, I can truly say by looking at this tree. Hello. Hello. The heat is just oppressive. It's so hot. It's literally unbearable. सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को. नाम बताओ. मिस्टिक मोजो. क्या? मिस्टिक मोजो. याद ही नहीं रहेगा तुम्हें. Come on, give me a break. Teenage subscribers. It's not that bad actually. Okay. Some of the things I've learned in these 6 months of being completely cooped up in bed. मतलब बिस्तर में पड़े रहना. कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, कोई हेल्प नहीं, कुछ भी नहीं. न खाना, न पीना, न दवा, न दारू, न कुछ. कौन अपने कौन पराए, असली पहचान तब हुई. बोलना नहीं चाहूँगा पर धीरे धीरे मैं रिवील करूँगा ज़रूर इंसानी फितरत क्या होती है. वेल, टू बिगिन विथ, लेट्स टॉक अबाउट द वेरी बेसिक्स, द वेरी फंडामेंटल्स ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ लाइफ एंड डेथ. तो why were we born if we have to die? And if we do die, where do we go? Where have I come from? Whither do I go? A very famous philosopher said this. And that's a fundamental question, I think, which drives humanity. Because we are beings who are conscious and who have reasoning and free will.
thoughts like these never plagued me in my carefree younger days. But जब ज़िंदगी के कांटों से आप जूझते हो ना, I think that is the time when reality hits. And you are very fortunate if you encounter suffering and obstacles in life, because that will make you real, that will make you human. If you live a life avoiding problems and sufferings or hiding them under the carpet, then it's a life of waste. Let me tell you this from my own experience. I am a cancer survivor. In 2001, I had cancer of the skin on my left calf. Out of the blue, unexpectedly, oh, I can see amaltas blooming. Let me show you that. It looks beautiful in summer. You know, the yellow blossoms are just pretty. आपको दिखाता हूँ अमलतास, और ये बहुत फेवरेट है मेरा आफ्टर बोगनविलास, because they are also colorful and they stand out in this oppressive heat. अभी तो हीट शुरू ही कहाँ हुई है. My God. The challenges of filming yourself is tremendous. But अब मैं जितना raw, जितना natural हो सकता है उतना रखूँगा. हिंदी इंग्लिश में ज़्यादातर बात करूँगा, और बीच में मन किया तो नेपाली, बंगाली, थोड़ी सी फ्रेंच में भी बातें करेंगे, और मिज़ो में भी, जो एक क्या बोलते हैं उसको, भाषा बोलेंगे या लिपि बोलेंगे, जिस राज्य से मैं बिलोंग करता था. अब तो खैर मैं पूरी दुनिया भर में फैला हुआ हूँ, जैसे ईश्वर अनंत. खैर बातें चलती रहेगी और नज़ारे भी आपको दिखाते जाऊँगा. और करम 2024 क्या है, इसका तोड़ आपको निकालना है. इसका मतलब आपने समझाना है मुझे कि है क्या चीज़ ये, यू नो, और मैंने क्यों चुना ये नाम, और ये यात्रा क्यों शुरू करी मैंने, इसके पीछे क्या राज है. राज बहुत ही सिंपल है, अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, बट बहुत गहरी भी है अगर उस नज़रिए से आप देखोगे तो बने रहिएगा जानते रहने के लिए कि करम 2024 आखिर है क्या, और मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ इससे. तो तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ. 7,000 कदम हो चुके हैं लगभग. मुझे 12 से 13,000 कदम करने हैं अभी, और टारगेट है एक दिन में कम से कम 15 से 20 कदम हो. 2.5-3 घंटे लगेंगे पैदल. और मैंने ना कुछ पैड लगाया हुआ है अपने सॉक्स के अंदर. वो पैड क्या करती है, आपका जो तलवा है ना, उस तलवे में से आपके टॉक्सिन्स निकालती है वो जो पैड है, और आपके बॉडी को भी वो कूल रखती है. तो ये सब चीज़ों से भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि करम यात्रा जो मेरा एपिक जर्नी रहने वाला है अभी, तो उसके लिए ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी. और चलो लेस तो बन गए, अब चलते हैं आगे. थक सा गया हूँ, पर हारेंगे नहीं. हार के आगे तो वैसे भी जीत है. एनीवे, बने रहिएगा. काफ़ी चल चुका हूँ आज, काफ़ी चल चुका हूँ आज. और जैसे मैं बात कर रहा था, रिवील तो नहीं करूँगा अभी फ़िलहाल, बट आपने बताना है कि करम 2024 क्या है. और ये लंबी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आप लोग भी जुड़ सकते हो मेरे साथ. एंड क्या हो सकता है, वाह, इतने अच्छा नज़ारा. डेंस फॉरेस्ट, लिटरली.
मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? अच्छा लग रहा है ना? आज तो पता नहीं 3 बजे उठ गया था और मेरा प्लान था कि 5 बजे मैं निकलूँ घर से, पर फाइलों को एडिट करते करते ना, क्योंकि शॉर्ट्स डालनी होती है मेरे को रोज़ और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में डालनी होती है, और इंस्टाग्राम ने पता नहीं क्यों मेरे को ब्लॉक करा हुआ है, तो आई कैन नॉट एक्सेस माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो एक दोस्त के यहाँ से मैंने देखा था कल, तो मेरा इंस्टाग्राम तो चालू है बट आई कैन नॉट एक्सेस दैट आइदर, इट हैज़ बीन हैक्ड, कुछ तो हुआ है जो मुझे पता नहीं है। खैर जो भी है, अब मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ कि किसी तरीके से लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी डालना शुरू कर दूँ, क्योंकि जो मेरा करम यात्रा है 2024, वो थोड़ा सा उसमें डेली ही करना पड़ेगा जहाँ तक हो सके, हो पाए मेरे से। सो दैट्स समथिंग विच आई हैव टू कंसिडर वेरी डीपली, एंड इट विल बी मोस्टली रॉ काइंड ऑफ फुटेज ओनली, यू नो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा तामझाम ये सब नहीं डाल पाऊँगा, बट कोशिश करूँगा कि एक डिसेंट लगे वीडियो, डिसेंट म्यूज़िक के साथ। और क्या हो सकता है, कोई आप में से कोई बता सकता है कि इंटरैक्ट कीजिए मेरे साथ। आर्ट आर्ट के साथ भी जुड़ा हुआ है करम, खाने के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रैवल के साथ जुड़ा हुआ है, सफ़र या सफारी जो भी कह लो आप, और ये सब चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आई हैव गिवन यू इनफ हिंट्स आई थिंक सोचने के लिए कि क्या हो सकता है। आज मैं थोड़ा सा अलग रूट ले लिया फिर से, मेरी पुरानी आदत नहीं गई फॉरेस्ट को अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करने के। मेरे को बंदर नहीं दिखाई दे रहे हैं आजकल, और नीलगाय भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जानवर, पक्षी, पंछी जो होते हैं ना, वो इंसानों से दूर ही रहते हैं, you know, because they know that human beings are really not reliable. Look at that plane, can you see it? और इसके कैनपी के बीच में से एंड अलग अलग चिड़ियों की आवाज़ चहचहाते हुए सुन लीजिए। अपने आप को नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अब बोर हो जाओगे यार मेरे को देख देख के, इससे अच्छा तो मैं नज़ारे ही दिखा दूँ आपको। तो और टेक्स्ट डाला करूँगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, मोस्टली इंग्लिश में, क्योंकि फिर सबको समझ में आ जाएगी। जिनको नहीं आएगी तो हाथ उठा देना, और उसको मैं या तो कम्प्लीटली हिंदी में कर दूंगा या कम्प्लीट इंग्लिश में कर दूंगा। दैट डिपेंड्स ऑन योर ओपिनियन एंड योर दिस थिंग। यू विल हैव टू टेल मी कि which format do you want? Do you want me to speak only in one language, or do you want it to be a multilingual kind of a thing? You'll have to tell me that. फिर उस हिसाब से I will literally, and it's going to be tremendous, it's going to be epic. It's not just you know, for a lark. Like the one I had started, 108, was also seriously started. It's not that I just did it for the sake of it, you know. So similarly, this Karam Yatra 2024 is also done with purpose, and there is a deep reason why I'm doing this, which I will unfold, and I think it should touch a chord in the lives of many people, because everybody can relate to that. जब मैं आगे बढ़ूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आप देखते रहिएगा। फिलहाल थोड़ी सी आउट ऑफ ब्रेथ हो गया हूँ, तो I'll just in a bit I'll meet you. As is wont, I did develop blisters on my toes and on the side edges of my feet, which is a given, I guess, considering I have softened up and I need to become really tough for Karam 2024. It's going to be a treat, especially for the viewers, but it's going to be tough on me. Imagine, it'll be back to the grind of editing and putting out the videos every single day. Oh my gosh, that's going to be quite something. I'm looking forward to it.
and I hope you will too. एक मचान जो बन रही थी जब मैं आया था दिसंबर में, अब बन चुकी है, तो मैं मचान के ऊपर चढ़ रहा हूँ। देखते हैं यहाँ से नज़ारा कैसा होता है। आई होप इट लुक्स नाइस। देखते हैं कैसा। आ जाओ, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। वाकई में क्या व्यू दिख रहा है दिल्ली का, मज़ा ही आ गया। ये देख लीजिए, है ना बढ़िया। नीचे लोग योगा और ये सब कर रहे हैं, आप देख लो। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, दिख गया। एक 360 व्यू दिखाता हूँ आपको। सूरज भी निकली हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, हेलो बोल दो। मेरा दोस्त मिल गया है छोटा सा। ये अच्छा क्या इन्होंने बना के नहीं। जब मैं आया था दिसंबर में, तब ये बन ही रहा था। वाह, मज़ा आ गया आज तो। अब नीचे उतरने का थोड़ा रहेगा। वैसे इट्स क्वाइट सेफ, तो डर नहीं लगता। हालांकि मेरे को हाइट से बहुत प्रॉब्लम्स हैं, पर ये काफ़ी अच्छा था। चारों तरफ अमलतास ही अमलतास दिख रहे हैं मेरे को, पीले पीले। और बोगनविला की तो क्या वैरायटी है। आज थोड़ा सा जल्दी आ गया था मैं 10 मिनट पहले, तो बिकॉज ऑफ दैट वेदर ठीक है। मतलब गर्मी है ऑब्वियसली, बट थोड़ा ठीक है और दिनों के मुकाबले ना। थोड़ी सी हैमस्ट्रिंग्स में टाइटनेस है। गुलमोहर भी थोड़ा सा खिला हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो वैसे गर्मी तो है, नो डाउट अबाउट इट। कभी कभी ब्रीज आ जाती है ना अच्छी वाली, तो अच्छा लगता है। दिस इज़ द नाइसेस्ट पार्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट। ये सबसे अच्छा मतलब बना हुआ है, साफ़ सुथरा। And there are people, hundreds of people doing yoga, you know, friends just sitting, chilling in the morning, elderly ladies basically, and men doing yoga, kids playing some makeshift game, makeshift cricket in fact, and they're really enjoying themselves. तो सबको अच्छा लग रहा है मॉर्निंग में। I think morning is the best time. मॉर्निंग में उठ के हमें कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। मैं मिस कर रहा था, पता है, पिछले 6 महीनों से बिस्तर में पड़े पड़े ना, बेड रिडन, मैं चल ही नहीं पा रहा था। चक्कर आते थे मेरे को, और जो वैक्सीन लगी थी उसने तो हालात ही मेरे बदल दिए। मतलब हालत ख़राब हो गई थी। इट वॉज रियली अनोइंग, एंड फॉर अ पर्सन लाइक मी हु इज़ क्वाइट एक्टिव, तो मेरे लिए बहुत असहनीय था, यू नो। सॉरी फॉर दैट। करम, KARAM 2024, इस एक्रोनिम का क्या मतलब हो सकता है? कैन यू गेस? आप गेस कीजिए, मज़ा आएगा। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ना। पिछली बार क्या हुआ था, मैं छोटा सा संक्षेप में बताता हूँ। दैट
108 डेज चैलेंज रखा था, तो 40% तो मैंने कर लिया था, डे 48 तक पहुंच गया था। डे 48 में एज यू ऑल मे नो और फॉर द न्यू व्यूअर्स हु आर वाचिंग, तो आई वाज अटैक्ड बाय स्ट्रीट डॉग्स इन कनॉट प्लेस एंड जनरली आई लव डॉग्स, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉगीज से, चाहे वो स्ट्रे हो या कुछ भी हो, पालतू कुत्ते हो, यू नो। बट हुआ यूँ कि मेरा दूसरा ट्रीटमेंट चल रहा था, वो बड़ा वाला, और साथ साथ क्या कहते हैं उसको, ये वैक्सीन तो पूरे महीने चला मेरा, तो वैक्सीन के कारण बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बहुत ज़्यादा। इतनी प्रॉब्लम्स हुई कि एक बार ही वैक्सीन एक आर्म में लगता था तो एक हाथ पूरा ही ख़त्म हो जाता था, मैं चल ही नहीं पाता था, बुखार और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई। तो करते करते 1 महीने कैसे तैसे निकल गया। उसके बाद इतना बीमार पड़ गया मैं कि मैं ना तो फॉरेस्ट तो छोड़ो, मैं घर में भी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर पाया, यू नो। चक्कर आते थे खड़े होते ही, और ऐसा लगता था कि अभी गिर गया। और वो ब्लड प्रेशर का इशू भी नहीं था, इट वाज सम अदर प्रॉब्लम, यू नो। एंड आई हैव बीन अवॉइडिंग गोइंग टू द डॉक्टर इन द सेंस कि फिर वो एलैबोरेट ट्रीटमेंट्स, ये वो पैसे खर्च करने वाली बात है, और पैसे भी नहीं है वैसे, यू नो। तो होपफुली ये जो मैं कर्म शुरू किया है मैंने, एक प्रोजेक्ट, साल भर शायद 2 साल तक चले, और हर कदम में उसका आपको मज़ा आएगा। फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो मैं चल रहा हूँ फॉरेस्ट में, दिस इज़ बेसिकली अपने आप को तैयार कर रहा हूँ, मैं फिट कर रहा हूँ ताकि बॉडी झेल सके कर्म 2024 का जो मेरा प्रोजेक्ट है। देखी जाएगी यार, एक ज़िंदगी है, जी लो, मेरा ये मानना है। एंड आपके जब बुरे वक्त आते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं, कौन आपके साथ है और कौन नहीं है। तो दुनिया देख ली, सब कुछ देख लिया, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ रही होंगी। जब मेरा वक्त था तो मैं कभी भी नहीं पीछे हटा किसी को हेल्प करने से, कभी नहीं, मेरी फितरत में ही नहीं है वो। एंड देन खैर जो भी है, ये बातें तो चलती रहेंगी, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग यात्रा। मैंने यात्रा बोल दिया तो आप समझ लो, आप समझ ही जाओ क्या है ये। एंड बने रहिएगा, इतना ही कह सकता हूँ। 3 दिन का मैं फुटेज एक साथ डालूँगा, जैसे 108 डेज़ का जब मैं कर रहा था ना, तो रोज़ मेरे को एडिट करनी पड़ती थी, और एडिटिंग में बहुत दिक्कतें होती है जब तक आपके पास सही मशीन और ये सब ना हो ना। हालांकि मेरे पास मैकबुक एयर है, पर मैकबुक इतनी लोड नहीं ले पाती है जो मैं शूटिंग करता हूँ। और बाद के वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कैमरा, कौन सी इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ। आई ट्राई टू कीप इट वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं। पैसे आएंगे तो देखी जाएगी, बट तब भी मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा तामझाम रखूँगा। तो अभी के लिए तो इतना ही, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। कैन यू टेल मी योर नेम? हाँ, आप कर लो, कैसे भी कर लो, मैं आई विल जस्ट फॉलो यू जस्ट डू इट। I'm experimenting with keeping the camera amid the vines as I do some push-ups and some full squats. देखते हैं कैसा दिखेगा। अभी तो एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है, बस कैमरा ख़राब ना हो जाए मेरा,
बस यही डर है। आई होप यू कैन सी मी क्लियरली। थोड़ा सा क्लोजअप कर दूं क्या? जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ब्रेकफास्ट बनाना। छिलका नहीं फेंकूंगा, डोंट वरी। आई ऑलवेज फॉरगेट टू पुट ऑन द माइक। मैं हमेशा माइक पुट ऑन करना भूल जाता हूँ। सीख रहा हूँ, इट्स नॉट ईजी टू कैरी सो मेनी लिटिल एक्सेसरीज। तो मैंने काफ़ी अच्छा वर्कआउट, वॉक सब कुछ कर लिया। और मैं देखता हूँ अभी तक कितने स्टेप्स हैं। घर यहाँ से मेरा अभी आधे घंटे का वॉक और है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं 10,612 चल चुका हूँ अगर आप देखोगे तो, which means another 3,000 steps to go by the time I reach home. बने रहेगा। And I'm in this canopy alone, thank God. It's a Sunday also, और लोग सो रहे होंगे मस्ती से, which is good. But I can't sleep before I reach my goal. तो ये मैगी का एक पुराना पैकेट था जिसमें मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके आया। ब्रेकफास्ट कह लीजिए, पोस्ट वर्कआउट कह लीजिए, जो भी है। अब इसको मैं वापस घर लेके जाऊंगा। एंड आई यूज़ दिस मैगी पैकेट टू थ्रो मोर रबिश so that I don't, and I'll throw it in the proper bin so that the guys can take it over. Can't wait to get back to the real forest very soon in Karam 2024. Thank you. See you until the next video. I'm waiting.